اور اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلگام کے پمبئی اور گوپالپورہ علاقوں میں آج بعد دوپہر 2 انکاؤنٹر ہوئے۔ الگ الگ جھڑپوں میں ممنوعہ تنظیم ٹی آر ایف کے کمانڈر سمیت 5 ملیٹنٹ مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو پمبئی کلگام میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ اس دوران نزدیکی گاؤں گوپالپورہ میں بھی ایک اور جھڑپ ہوئی جو کہ دیر گئے تک جاری تھی۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوئی دونوں جھڑپوں میں ٹی آر ایف کے کمانڈر آفاق سکندر سمیت 5 ملیٹنٹ مارے گئے۔ ان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ان دونوں جھڑپوں کو اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ادھر پولیس اور فوج کے اعلیٰ افسران انکاؤنٹر کے مقام پر پہنچے ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پمبئی کلگام اور گوپالپورہ کلگام میں آج بعد دوپہر 2 انکاؤنٹرز ہوئے، اور ان دونوں انکاؤنٹرز میں ابھی جو ذرائع کے مطابق ہمیں خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 5 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ بعد دوپہر یہ دونوں انکاؤنٹر شروع ہوئے۔ پہلے پمبئی میں جو انکاؤنٹر شروع ہوا، اس کے بعد جو فوراً بعد ہی گوپالپورہ میں بھی انکاؤنٹر شروع ہوا، لیکن آج دوپہر کے قریب ہی ان دونوں علاقوں کا محاصرہ کیا گیا تھا، جس کے فوراً بعد کانٹیکٹ ہوا اور دونوں مقامات پہ انکاؤنٹر شروع ہوئے۔ ہم نے ابتدائی مناظر میں آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی تھی، اور پولیس، سیکیورٹی فورسز، فوج کی ٹکڑیاں یہاں پہ بلائی گئی تھی تاکہ اس علاقے میں ملیٹنٹس کو ٹریپ کرنے کے بعد انہیں وہ ایلیمنیٹ کیا جائے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ دونوں علاقے گوپالپورہ اور پمبئی جو علاقے ہیں، دونوں میں انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے، لیکن جو ہمیں ذرائع سے اطلاع موصول ہے اس کے مطابق 5 ملیٹنٹ ابھی تک مارے گئے ہیں۔ ظہور رضوی، نیوز 18 نیٹ ورک، پمبئی کلگام۔ ضلع بارہمولہ کے پلہالن پٹن میں ملیٹنٹوں نے سی آر پی ایف کی ناکہ پارٹی پر گرینیڈ سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 سی آر پی ایف اہلکار اور 4 عام شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پہلے ٹراما اسپتال پٹن پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں سری نگر منتقل کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ حملہ سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے پر پلہالن پٹن کے مقام پر کیا گیا۔ اس حملے کی زد میں ایک سومو گاڑی بھی آ گئی۔ حملے کے فوراً بعد آرمی، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی تھی۔ آئی جی، ڈی آئی جی نارتھ، سی آر پی ایف اور آرمی کے اعلیٰ افسران نے جائے واردات کا دورہ کر کے جائزہ لیا۔ حیدرپورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے الطاف احمد کے اہل خانہ نے آج بھی پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا۔ انصاف کرنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باوقار انداز میں تدفین کے لیے الطاف احمد کی لاش دینے کی مانگ کی۔ یاد رہے کہ پولیس کے مطابق الطاف احمد کراس فائرنگ میں مارے گئے، لیکن پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لواحقین کو لاشیں حوالے کرنے کی صورت میں امن و ضبط کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں بولتی ہوں وہاں وہ ملٹری والے، پولیس والے، سی آر پی ایف والے ان کے ساتھ روز صبح چائے پیتے تھے، اس کے دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، آروپی وہاں پر بیٹھتی رہتی ہے۔ اب وہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ وہ سویلین نہیں تھا؟ اے جی صاحب تو خود بول رہے ہیں، پھر ہمیں باڈی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ہمیں باڈی دو، ہمیں باڈی چاہیے، ہمیں باڈی چاہیے۔ کل جب میں آئی جی کے پاس گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندارے میں دفن کیا ہے ان کو، اب ہم ان کو، آپ ادھر جاؤ اس کو خراج عقیدت قبر پہ پیش کرو۔ ہم وہ نہیں چاہتے ہیں، اس کے 3 معصوم بچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری الٹیمیٹم یہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہماری بھائی کی لاش کو واپس کر دو۔ حیدرپورہ سری نگر انکاؤنٹر میں مارے گئے ڈاکٹر مدثر گل کے اہل خانہ نے پولیس کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مدثر OGW تھا، لیکن ڈاکٹر مدثر کے اہل خانہ نے آج بھی پریس کالونی میں احتجاج کیا اور پولیس کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کر کے دکھائے۔ مدثر گل کی بیوہ آج خاندان کے کچھ دیگر افراد کے ساتھ پریس کالونی پہنچی تھی۔ یہاں آئے مدثر گل کے اہل خانہ نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مدثر گل کے لیے ڈاکٹر ایسوسیشن کہاں ہے؟ میری بیٹی کو یتیم کیوں کیا؟ یہ 1 سال کی ہے، یہ ایک ورڈ بولتی ہے، بابا بابا بولتی ہے۔ اس کو بابا دے دو، اس کو بابا لاؤ، کیوں مامو؟ اس کو شکل دکھاؤ، اپنے باپ کی شکل دکھاؤ۔ حیدرپورہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے الطاف احمد اور مدثر گل کے اہل خانہ نے پریس کالونی سری نگر میں کینڈل لائٹ احتجاج کیا۔
مظاہرین نے دونوں کی لاشوں کو گھر والوں کے حوالے کرنے کی اپنی مانگ دہرائی۔ سری نگر کے حیدر پورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے رامبن کے سنگلدان علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد عامر ماگرے کے والد نے پولیس کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق عامر ماگرے ملیٹنٹوں کا ساتھی تھا اور انکاؤنٹر میں اسے ہلاک کر دیا گیا۔ عامر کے والد محمد لطیف ماگرے کا کہنا ہے کہ انہوں نے سال 2005 میں ایک ملیٹنٹ کو پتھر سے مار دیا تھا۔ بعد میں انہیں سابق گورنر این ووہرا، پولیس اور فوج کے ہاتھوں انعام سے نوازا گیا تھا۔ محمد لطیف کو سیکیورٹی بھی ملی ہوئی ہے۔ محمد لطیف نے ایل جی سے ان کے بیٹے کی ہلاکت کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور تدفین کے لیے لاش گھر والوں کو دینے کی اپیل کی ہے۔ اسی دوران ضلع انتظامیہ رامبن نے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سری پورہ اور سنگلدان کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ 4 سرپنچ اور بھائی وغیرہ ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں کس نے مارا اس کو الزام لگایا کہ یہ ملیٹنٹ ہے، جبکہ وہ حیدر پورہ میں مفتی کورس کر کے بانڈی پورہ میں 2 سال اس نے مولوی کورس کیا، پھر اس کے بعد جناب دیوبند میں وہ چلے گیا 2 سال، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر گھر میں وہ رہا، لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہ سری نگر میں چلے گیا۔ 6 مہینے کے بعد آج جناب اس کو ملیٹنٹ قرار دیا، جبکہ میں نے خود پتھر سے ملیٹنٹ مارا ہے اور خود مجھے گولیاں آئی ہیں۔ میرا ایک بھائی چچیرا وہ بھی گولیوں سے ملیٹنٹوں نے مارا۔ اس کے بعد ہم گھر سے مائیگرنٹ ہو گئے، 11 سال کے بعد ہم گھر واپس آئے۔ میں نے بچوں کو بڑے مشکل سے چھپا کے جناب پالا تھا اور پڑھایا تھا کہ بچے کی ڈیڈ باڈی مجھے نہیں مل رہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں گورنر صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بچے کی ڈیڈ باڈی ملے اور تاکہ ہم اس کا جو مرنا کرنا اپنے گھر میں کریں۔ حیدر پورہ سری نگر انکاؤنٹر کے دوران 2 شہریوں کی مبینہ طور پر ہلاکت کے خلاف پی ڈی پی نے مظاہرہ کیا۔ آج جموں میں پی ڈی پی کارکنان احتجاج درج کرانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اس احتجاجی مارچ کی قیادت کی۔ ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرین نے دونوں شہریوں کی لاشیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران محبوبہ مفتی نے میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے مارے گئے شہریوں کی لاشیں فوری طور پر ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ لواحقین کے مطالبات کا احترام کیا جائے۔ جب بھی ان سے کوئی فائرنگ میں مر جاتا ہے تو اس کو OGW کا الزام لگاتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور ان کو اسباقی ہونے کی وجہ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل معصوم لوگ ہیں، اور آج ان کے گھر والے ان کی لاشیں مانگ رہے ہیں اور ان کو وہ لاشیں بھی نہیں دی جا رہی۔ حیدر پورہ میں عام شہریوں کے مبینہ قتل کے واقعات کی آزادانہ جانچ کرانے کے مطالبے کا این سی نے اعادہ کیا۔ لاشیں اہل خانہ کے حوالے کرنے کی بھی مانگ کی۔ این سی ترجمان عمران نویڈار نے سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر میڈیا سے بات کی۔ ادھر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے انکاؤنٹر سے لے کر پورے واقعات میں پولیس کے طرز عمل پر سوال اٹھائے۔ عمر عبداللہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ پولیس نے اعتراف کیا کہ وہ عمارت کے مالک الطاف اور کرایہ دار گل کو عمارت میں لے گئے اور انہیں دروازے پر دستک دینے کے لیے استعمال کیا۔ پھر ان لوگوں کو ملیٹنٹ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ عام شہری ہیں جو اس لیے مارے گئے کیونکہ انہیں ڈھال بنا کر خطرے میں ڈالا گیا تھا۔ این سی لیڈر نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ انہیں ملیٹنٹ یا OGW بتا کر بدنام کرنا بھی بہت برا کام ہے۔ لاشوں کو زبردستی دفن کرنے کے عمل کو بھی عمر عبداللہ نے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ پولیس نے بہت ہی ڈیفرنٹ بیانات دیے۔ پہلے بولا گیا کہ جو ہے کراس فائرنگ میں مارے گئے، پھر بولا گیا کہ پسٹل فائر۔ سو وہاں سے ابھی تک کوئی ایسا جو کمیونیکیشن پولیس کی طرف سے آیا، بہت کنفیوژن کمیونیکیشن آیا۔ اور آج حیران کی بات یہ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں گول رامبن کی بات جو آ رہی ہے، اس کے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملیٹنٹ ہے، اس کی فیملی اس کلیم کو کنٹیسٹ کر رہی ہے، تو یہ بہت ایک سیریس چارج ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پورا گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ایل جی ایڈمنسٹریشن کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایلیگیشن جو لگ رہی ہیں، خاص کر جو فیملیز اس ٹائم پہ یہاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں پریس انکلیو میں، ان کا ڈیمانڈ دیکھنا پڑے گا۔ پھر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ٹائم باؤنڈ ہو۔ این سی نے شہریوں کے قتل کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور قصورواروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ این سی ترجمان عمران نبیڈار نے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ضمن میں ایل جی منوج سنہا سے فون پر بات کی ہے۔
सदर मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने आज LG मनोज सिन्हा साहब से फ़ोन पे राबता किया और उनसे जो है हैदरपुरा एनकाउंटर में जो शहरी हलाकतें हुई हैं उनके बारे में गैर जानिबदाराना तहकीकात के अलावा उनके लवाकीन को जो मयतें हैं जिनको दफनाया गया है शायद हंदवारा के साइड से उनके हवाले किया जाए और जो डिमांड्स फैमिलीज़ की है उस पर जो है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गौर किया जाए और ये आज डॉक्टर साहब ने LG साहब को थ्रू टेलीफोनिकली उनके साथ बात करके ये बोला और जिस पे पॉजिटिव रिस्पांस किया LG मनोज सिन्हा ने, जिन्होंने ये बोला कि वो इनके जो है इनकी डिमांड्स इसको ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखेंगे और एक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। अब उम्मीद है कि LG साहब ने भी उनको वापस यकीन दहाई दी कि वो इस मसले को पूरे ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखेंगे और सही तरीके में इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में PDP सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजों ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती हैदरपुरा इनकाउंटर में मुबीना आम शहरियों की हलाकत पर सियासत कर रही हैं। एहतजाजों ने महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को नजर आतिश किया। फ्रंट के सदर अशोक ने इल्जाम लगाया कि PDP सदर यूटी के अमन में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को इख्तिदार पर रहने के वक्त के अपने बयानात याद रखने के लिए कहा है। जो महबूबा मुफ्ती आज अपने घर के अंदर बंदूकों के साए के अंदर जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और दिल्ली वाले उसको स्टेन गन दे करके उसकी सुरक्षा करने का प्रबंध कर रहे हैं, इसके विषय के अंदर भी विचार होना चाहिए। जब खुद कुर्सी के ऊपर थी कहती थी बच्चे वहाँ टॉफ़ी लेने जाते हैं, तब क्या था? जब कुर्सी पर थी एक स्टेटमेंट, अब नीचे आ गए तब दूसरा स्टेटमेंट। इसलिए ये राजनीति अब जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला के दफ्तर में मीटिंग हुई। दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, महकमा इंटेलिजेंस के अफसरान, जम्मू कश्मीर के DGP NIA और CRPF के DG और सिक्योरिटी महकमे से वाबस्ता आला अफसरान मौजूद रहे। इजलास में जम्मू कश्मीर में हालिया मुबीना टारगेट किलिंग और वहां की दाखिली सलामती मीटिंग का अहम एजेंडा था। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के कुछ लीडर पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे पार्टी हाईकमान को भेज दिए। इन लीडरों का कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में PCC सदर को हटाया नहीं जाता तब तक वो पार्टी ओहदों से दूर रहेंगे। साबिक MLC नरेश गुप्ता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमान बुज़दिल लोगों के पास रखी है। पार्टी के ओहदेदारी के तौर पर हमारे अपने पार्टी में विद इन दी हाउस अपने कोई मतभेद हो सकते हैं, मगर जहाँ तक कांग्रेस का वजूद है हम कांग्रेस के लोग हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सपाही हैं और हम यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारा पूरा रहेगा। कई हैं जो इश्यूज़ हैं ऐसे जो हम विद इन दी अपने हाउस में ही अपने उस हाउस को सेट राइट करना चाहते हैं, तो उस हद तक हमने पार्टी पोस्टरों से अपनी रिजेंटमेंट शो करते हुए कि पार्टी हाईकमांड को रिज़ाइन किया है कि हमारी बात को सुना जाए। ये जो माहौल जो चल रहा है, जो बीजेपी ने यहाँ दहशत का माहौल यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है, उससे लड़ने के लिए हमें बहादुर लोगों की ज़रूरत है, हमें बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि ये बुज़दिल लोगों के हाथों में आज कांग्रेस की कमांड जो है वो स्टेट को आगे नहीं ले रही। कांग्रेस का जो ज़मीन है उसको लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमने देखा कि आपके जलसे में जो है जो आपके साथी हुआ करते थे वो जलसे में नज़र नहीं आ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं पार्टी के ओहदे से, क्या वजह है इसकी? मैंने मेरे जहाँ मीटिंग होती है, मेरी जहाँ भी मीटिंग हो रही है और होने वाली है, वहाँ के लोकल और लीडर एक्स MLA एक्स मिनिस्ट्री मीटिंग कर रहे हैं, कोई बाहर वाला नहीं कर रहा। कल अगर देखा जाए कल रात को जो है इन्होंने पार्टी से रिजाइन किया है, ओहदे से अभी सुना, मुझे नहीं उसके बारे में कुछ जानकारी। बडगाम में कांग्रेस के जिला सदर जाहिद हुसैन जान ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस पार्टी की नाक़िस कारकर्दगी है तो इसकी जिम्मेदार पार्टी लीडरशिप पर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के साथ ही हैं। लोगों ने मास रेजिग्नेशन इस वजह से की
क्योंकि जो इस समय हमारी पार्टी क़यादत है, मुझे लगता है वो इस काबिल नहीं है आज के दौर में पार्टी चलाने के लिए, क्योंकि जो आज के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनके कार्यकाल में परफॉर्मेंस के बिना पे, सीनियरिटी के बिना पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से पार्टी में बदअमनी फैली। अब अगर हमारी जो सेंट्रल कांग्रेस की क़यादत है, मोहतरमा सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, वो इस बात पे गौर खोज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को बहुत ही बहरान का मतलब वो सामना करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद वादी चनाब में ज़िला डोडा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने डोडा के डाक बंगले में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। कांग्रेस पार्टी कारकुनान भी आज़ाद से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस लीडरान वक़ार रसूल, नरेश गुप्ता, गुलाम मोहम्मद सरूरी, उर्फी मजीद वानी और दीगर गुलाम नबी आज़ाद के हमरा मौजूद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने आज़ाद से मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बातचीत की। आज आपका खिते का दौरा है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में यहाँ पर देखी जा रही है कि नाराज़गी जो है काफ़ी सालों से है। लोग जो है कांग्रेस में जो है यहाँ दिन ब दिन ज्वाइनिंग करते थे, लेकिन कुछ सालों से जो है लोग दूर हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है वो लोगों में नहीं जा रही, या इसकी और कोई वजह है? नहीं, हमारे तो यहाँ लोग बेचारे जाते हैं, अधिकतर जाते हैं, और ख़ास तौर से मैं चिनाब वैली की बात करूँगा। हमारे सभी लीडर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, और इसके बावजूद भी कि बहुत टफ एरिया है, डिफ़िकल्ट एरिया है, यहाँ मिलिटेंसी भी कश्मीर की तरह बहुत अरसे तक रही है, और कोविड था बीच में, इस बीच में स्टेट के डिवीज़न की वजह से भी हालात ख़राब हो गए थे। उसके बावजूद भी हमारे मेरे ख्याल में चिनाब वैली के सभी साबका कांग्रेस के एमएलए लोगों से इन टच। तो अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ये कहना था 370 के बाद जो है डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट कम, किलिंग्स ज़्यादा हो रही। कल भी जो हैदरपुरा में जो है श्रीनगर में किलिंग्स हुई है, जिसमें डॉक्टर की किलिंग हुई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? 370 के बाद जो है लोगों में कोई भी जो डेवलपमेंट कम और किलिंग्स ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ये गवर्नमेंट ज़मीन पे डेवलपमेंट पे विश्वास नहीं रखती है। टेलीविज़न पे और रेडियो पे डेवलपमेंट हो जाए, वो इस सरकार का एजेंडा है। मुल्क के 5 रियासतों में जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस जो है कमबैक करेगी, या अगर देखा जाए कांग्रेस के उतने हालात ठीक नहीं है मुल्क में? अब देखें, हिमाचल ने एक रास्ता दिखाया है लोगों को, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी वहाँ बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी 4 सीटों में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो एक हिमाचल ने एक दिशा दी, एक रास्ता दिया है, तो शायद लोग उस पर अमल करें। गुलाम नबी आज़ाद रामबन कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर अरुण सिंह राजू के घर एक दावत में शरीक हुए। रामबन के मुअज़्ज़िज़ शहरियों समेत सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की खस्ता हाली पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में मसला उजागर किया, लेकिन हुकूमत सिर्फ ठेकेदारों को बदलने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में लगातार हो रहे इजाफे को सख्त तशवीशनाक करार दिया। ये जो रामबन और बनहाल के बीच में, बल्कि रामबन और बटोत के बीच में जो पैच है, इसमें मेरे ख्याल में 20वीं दफ़ा मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि रामबन ये बनहाल से श्रीनगर भी कब की मुकम्मल हो गई है, बटोत से जम्मू की कब की मुकम्मल हो गई है, टनल भी मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन ये पैच कई बार हमने बताया है कि बड़े कंट्रैक्टर्स को दे दो। यहाँ तो हर दफ़ा सरकार, कभी एक कंट्रैक्टर होता है, कभी 2 साल के बाद दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है, जिनको अनुभव नहीं है। छोटी छोटी कंट्रैक्टर्स से नहीं काम चलेगा। मैंने जैसे कहा कि इसमें मशीनरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरी वैली में और पूरी जम्मू प्रोविंस में, पूरी स्टेट में भयंकर बेरोज़गारी है, और पढ़े लिखे लोगों की भी रोज़गारी है, और जो अनपढ़ हैं वो भी, उनके लिए भी कोई काम
क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क जो है तकरीबन ठप है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, कहीं बिल्डिंगों का काम नहीं हो रहा। ठीक है, सड़क पर हो रहा है, लेकिन जैसे पहले बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप। गुलाम नबी आज़ाद ने ठाठरी का दौरा करते हुए एक मेगा रैली का एहतमाम कराया। अपने खिताब में आज़ाद ने लोगों को मुतनब्बे किया वो तफरका अंग्रेज़ ताकतों और फितनों का शिकार न हो, ताकि 2019 में 5 अगस्त के बाद वाले हालात जैसी मायूसी का फिर से सामना न करना पड़े। आज़ाद के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा सदर गुलाम अहमद मीर को तब्दील करने का तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। हमारी डिमांड है कि परफॉर्मेंस बेस पे प्रेसिडेंटों को रखा जाए। पहले 11 साल रहा, फिर 7 साल रहा, तो परफॉर्मेंस कौन सी? इसलिए हमने जो है मेरे पास तो पार्टी ओहदा कोई नहीं था, मैं तो एज ए AICC मेंबर ही हूँ, और बाकी लोग जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मैडम सोनिया गांधी को नाराज़गी अपनी जताई थी कि चेंज ऑफ गार्ड किया जाए कांग्रेस में। कुछ लोग हमको छोड़कर चले गए हैं, टॉप लीडरशिप छोड़ के चले गई है, कुछ जाने वालों में से थे। तो हमने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो अभी पार्टी लीडरशिप ने कोई इसमें टाइम नहीं दिया, ना ही कोई इसमें चर्चा का कोई अभी टाइम दिया गया है हमको, ना ही कोई अपॉइंटमेंट मिली है। इसलिए हमने बेटर समझा कि अपना ग्रीवेंसेस को अपनी पार्टी लीडरशिप को, अपनी पार्टी हाईकमांड को हम यही बताएंगे कि हम जिन ओहदों पे हैं हम उन ओहदों से रिजाइन करते हैं। और एक ऑर्डिनरी बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार चरंगू ने कश्मीर में पीएम पैकेज के मुलाजमीन का मसला फिर से उठाया। इस ज़िम्न में उन्होंने राजभवन पहुंचकर LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। तशद्दुद के हालिया वाक़यात के बाद वादी की हिंदू और सिख अक़लियतों के मुश्किल हालात को उजागर करने के लिए चरंगू ने LG को मेमोरेंडम पेश किया। जो अभी कश्मीर के हालात हैं, घाटी में जिस प्रकार से पिछले 2 महीनों में सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, कश्मीरी पंडितों पर फोकस करके आतंकवादियों ने जिस प्रकार की कार्रवाइयां की, और उसके बाद में पीएम पैकेज के अंतर्गत जो वहां पर काम कर रहे हैं वो सारे युवा जो हैं उनको तकलीफें झेलनी पड़ी। राज्यपाल महोदय जी से, उपराज्यपाल महोदय जी से प्रार्थना की कि एक कंपैशनेट और एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का प्रेशर न लाएं उनके ऊपर इस समय। और उसके अलावा जो अभी नए भर्ती में आए हैं लोग, उनको भी ज्वाइन करने का मौका मिले, और वो भी ज्वाइन करके बाद में देख लेते हैं कब से वो अपनी जो ड्यूटीज हैं उनके लिए रिपोर्ट करेंगे। हम इन प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत जितने भी अपॉइंट वहां हुए हैं, जिनके पास क्वार्टर्स नहीं है, लगभग तो 90% लोगों के पास क्वार्टर्स नहीं है, उनको ये क्वार्टर्स दे दे। आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 मेडिकल के पहले बैच का इफ्तिताह कर दिया गया। आज GOC चिनार कोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। अब की बार इस प्रोग्राम में 20 लड़कियों को शामिल किया गया है। पिछले सुपर 30 को इस बार सुपर 50 कर दिया गया। इन स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ मेडिकल स्ट्रीम्स के दाखिला इम्तिहानात देने के काबिल बनाया जाएगा और उन्हें 12 महीने की कोचिंग दी जाएगी। तालीम फराहम करने के साथ साथ इन लड़कियों को सेंटर में लाइब्रेरी, मेस और रेस्ट रूम्स की इजाफी सहूलियात भी मुहैया की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के दौरान तालीम के जरिए खवातीन को बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सक्सेस इस प्रोजेक्ट का है वो इन बच्ची के सिलेक्शन का नहीं है, मगर अगर 1800 बच्चे पैन कश्मीर से इस कंपटीशन के लिए हर लेवल से लड़े हैं और वो यहाँ पर आना चाहते हैं, ये दिखाता है कि कम से कम 2000 पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इतनी बच्चियाँ जो हैं हमारे ऊपर विश्वास करती हैं कि यहाँ पे आने के बाद में उनके अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे सबसे पहला तो शुक्रिया अदा करना चाहिए परिवार का, जिस परिवार ने अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द किया है और सोचा है करने के लिए। और दूसरा, मैं इन बच्चियों के ऊपर बहुत फख्र करता हूँ कि उन्होंने ये माना कि हमारे पास आकर के इनका कुछ आगे के लिए भला हो सकता है। मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं आर्मी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो ये ऐसा प्रोग्राम चला रही है जिसमें बच्चों को इतना बेनिफिट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, वो भी बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और मैं ये चाहती हूँ अगर ऑल ओवर इंडिया में ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहा तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंडिया होगा वो टॉप लेवल पर पहुँच जाएगा।
हर स्टूडेंट के घर का फैमिली बैकग्राउंड लाइक इकोनॉम, ये जो हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात अगर करेंगे, हर किसी की एबिलिटी नहीं होती कोचिंग अफोर्ड करने के लिए, बट मुझे चाहिए राइट डायरेक्ट एबिलिटी अफोर्ड करने के लिए साथ साथ हमें राइट डायरेक्शन भी चाहिए। हम कोचिंग जाते हैं, वहाँ सिर्फ हमें क्लासेस मिलती है, बाकी अकोमोडेशन वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे सिर्फ बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ है, टीचर्स बेटर से भी बेटर हैं, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मतलब कि अब पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी वो हमारी हेल्प करते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इफ्तिखार अहमद वानी फनकार बनने के अपने बचपन के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कारपोरेट एग्जीक्यूटिव के ओहदे से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन इफ्तिखार ने अपनी मुनाफा बख्श नौकरी छोड़ दी। वादी की तारीखी अहमियत की हामिल मजहबी जगहों और इमारात की पेंटिंग्स बनाने को उन्होंने अपना मशगला बनाया है। अब वो एक माहिर खत्तात और मुसव्विर बन चुके हैं। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर के नामवर मुसव्विर और पेंटर इफ्तिखार अहमद वानी दुबई में एक बरतानवी कंपनी के कारपोरेट एग्जीक्यूटिव और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2012 में इन्हें ये एहसास हुआ कि कारपोरेट जॉब उनका ख्वाब नहीं थी। वो तो बचपन से ही कैनवस को कलर से भरना पसंद करते थे। जिसके बाद इफ्तिखार वानी ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जॉब करते हुए साथ साथ पेंटिंग भी शुरू की, लेकिन पेंटिंग पर सही तरीके से तवज्जो मरकूज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने की ठान ली और कारपोरेट जॉब छोड़ दी। इफ्तिखार वानी वादी वापस आ गए और तब से वो मुसव्विरी और खत्ताती कर रहे हैं। वो अपनी शौकिया पेंटिंग्स के लिए ऑयल, एक्रेलिक और वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं और अपने इस मशगले से उन्हें काफी लगाव है। हालांकि इफ्तिखार वानी ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी से सीखा नहीं है। इसके बावजूद वो अब तक 500 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं और कई नुमाइशों में भी हिस्सा ले चुके हैं। वादी की मजहबी और तारीखी यादगारों की पेंटिंग करके वानी ने अपना मुनफरिद मकाम बना लिया है। ये तो एक हर एक की शख्सियत में कोई एक ही काम, एक मुख्तलिफ पहलू होते हैं और बचपन से, जैसे मैंने कहा ना, मेरे बचपन से ये शौक था, दबी हुई ख्वाहिश थी कि मैं पेंटिंग्स बनाऊं इस पर, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला और ऐसे कोई उस्ताद नहीं मिले। जहां हम रहते थे वहां कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, तो फिर इसको प्रैक्टिकल शेप 2012 में ऐसे मिली कि ये एक शौक जुनून की हद तक इख्तियार कर गया। तो फिर मुझे अपने जो मसरूफियात थी उसमें से वक्त निकालना पड़ा और इस पर मैं अपनी दिल के, अपने जहन, अपनी रूह की सुकून के लिए मुझे ये करना पड़ा। इस नुमाइश में इफ्तिखार की पेंटिंग्स और खत्ताती के दिलकश नमूने सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। आर्ट के चाहने वालों ने हालिया दिनों महातास स्टूडियो में इदराक की तरफ से मुनक्किद की गई नुमाइश में इफ्तिखार वानी की फनकारी को खूब पसंद किया। वानी के फनपारों के खरीदार कई ममालिक में मौजूद हैं। बरतानिया, दुबई, अमेरिका और सिंगापुर में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स फरोख्त की हैं। वानी कहते हैं कि कश्मीर में आर्ट और पेंटिंग्स को फरोग देने के लिए हुकूमत आगे आए। सरकारी दफातर और दीगर मकामात पर लगाने के लिए मकामी फनकारों से पेंटिंग्स खरीदी जाएं। चीजों से हमें अपना कल्चर जो है वो रिवाइव, यानी हमें फिर से उस दौर में ले जाता है और आगे इनको अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमारा कितना रिच कल्चर है और आगे हम इसको ले जाएं ताकि ये मौजूद रहे। वानी फिल वक्त शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की पेंटिंग्स पर मुश्तमिल एक सीरीज पर काम कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि जब वो पेंटिंग्स पूरी हो जाएंगी तो दुनिया भर के मुहिब्बान फन उनकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से मुनक्कदा 3 रोज़ा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। परिहासपुरा पटन के SSM कॉलेज में मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। इस चैंपियनशिप में वादी भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में IRP बेस्ड बटालियन के SSP बाकर सामून मेहमान खुसूसी थे और कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन फारूक रिंजोशाह मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे।
SSM کالج کے عہدیدار اور دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود رہیں۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ سب سے بڑی میری یہ خوشی ہے کہ میں نے ایک انٹرنیشنل پلیئر کو ہرایا، حالانکہ میں بھی ڈسٹرکٹ لیول کی ہوں، میں انٹرنیشنل پہنچی ہی ہوں تو، اور یہاں پہ بہت اچھا لگا، یہاں پہ ماحول یہاں پہ بہت اچھا تھا اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز یہاں بہت اچھی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہو جائے، کنٹینیوسلی ہو جائے۔ سپورٹس اکیڈمی کے ہائی ٹیلنٹس اور ان کا پرفارمنس میرے خیال میں اٹ از ون آف دا کلاس، اینڈ یہ پروو کرتا ہے کہ ساری دنیا میں جو ہمیں کریٹو سٹی آف آرٹ کا یہ درجہ ملا، اور ہم ثابت کرتے ہیں جو ہمارا مارشل آرٹ ہے یہ دنیا کا بہترین آرٹ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اپیل ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹس میں حصہ لینے کے لیے آنے دیں، اور اس سے ایک بہت بڑا اچھا میسج یہ جا رہا ہے کہ جو ڈرگس میں ہمارے کافی بچے جو ہیں انوالو ہوتے ہیں، اس سے کافی اچھا موقع ہے کہ بچے جو ہیں اس سے ڈرگس سے بچ سکتے ہیں۔ ضلع لیہ میں کووڈ کے کیس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے اسکول کو بند کر دینے کا حکم دیا ہے۔ عوام کے مطابق سیاحوں کی آمد کی وجہ سے تشویشناک صورتحال ہوئی ہے۔ لوگوں کے مطابق سیر و تفریح کے شوق میں سیاح جعلی RT-PCR رپورٹ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ادھر چیف میڈیکل افسر نے نیوز 18 اردو کو بتایا کہ سردیوں میں لوگ گرمی کے لیے اکٹھے رہتے ہیں اور شادیاں اور دیگر تقریبات میں بہت رش رہتا ہے۔ بہت بڑا اس میں اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ایک کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر نام کا چیز بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا، بڑے بڑے سوشل گیدرنگز ہو رہے ہیں، میریجز ہو رہے ہیں، فیونرلز ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں جہاں پہ کوئی کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کا فالو نہیں ہوا۔ تو اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا کیسز رائز ہوا ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جس کسی کو بھی سائن اینڈ سمٹمز ہو، فیور ہو، نزلہ بخار جیسا ہو، زکام ہو، کھانسی آتا ہو، اس ٹائپ کا سمٹمز ہو تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، اور ہمارے نیئرسٹ جو ہمارے نزدیکی ہمارا جو سواستھ وبھاگ کا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، سب سینٹر ہو، PHC، ان کو فون پہ انفارم کرے کہ مجھے یہ سمٹمز ہیں اور آپ کا سیمپل لیا جائے گا، اور جیسے ہی آپ کا جتنے جلدی آپ کا سیمپلنگ ہوگا پھر اس روگ کو پھیلنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ یوم اطفال کی مناسبت سے کرگل میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول پوائن میں اس حوالے سے 3 روزہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اسکولی طالبات نے یہاں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ بعد میں بہتر کارکردگی کرنے والی لڑکیوں اور بچیوں کو انعامات اور تحفے دیے گئے۔ پنجابی فلم گینگ وار 84 کی شوٹنگ کے سلسلے میں ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والا عملہ جموں میں ہے۔ یہ لوگ آج مبارک منڈی کمپلیکس میں شوٹنگ میں مصروف تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ بالی ووڈ ہستیوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے والے 50% سے زیادہ فنکاروں کا تعلق جموں سے ہے۔ فلم میں بالی ووڈ کے نامور اداکار شکتی کپور بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی کردار ادا کرنے والے فنکاروں کا کہنا تھا کہ لوگ اس فلم کو دیکھنا پسند کریں گے۔ یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہے اور 70 میں سے لگا لو 40 جو ہیں آرٹسٹ وہ ادھر کے اور باقی ممبئی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں۔ سر دیکھیے جب یہ مووی بن رہی ہے تو اس میں کافی سارے آرٹسٹ ہیں جو بالی ووڈ سے ہیں، اور میکسیمم 50% آرٹسٹ جو ہیں ہماری JNK کے ہی ہیں۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے جموں میں شوٹنگ ہو رہا ہے، 50% آرٹسٹ جموں کے ہیں، تو ہم لوگ سبھی مل کے ممبئی کے آرٹسٹ سب مل کے اسکرین کو شیئر کر رہے ہیں، تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ سری نگر میں آج سوشل میڈیا جرنلزم کے موضوع پر ایک مباحثہ منعقد کیا گیا۔ کشمیر کے کئی صحافی یہاں شریک رہے۔ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز کی کلچرل ونگ نے کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ نیشنل جرنلزم ڈے کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے مسائل اور امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مختلف تجاویز پیش کی گئی۔
आजकल फेक न्यूज़ का दौर दौरा है सोशल मीडिया के ज़रिए, और बाकी चीज़ें किसी की तजलील होती है बेवजह, और फैक्ट चेकिंग के बिना ही सारे लोग, जिसके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है और सिम कार्ड है, वो एक जर्नलिस्ट बना बैठा है। इन सारी चीज़ों पर किस तरह से कदगन लगाया जाए, इस मैकेनिज़्म के हवाले से उन्होंने अपनी कीमती आरा और तजावीज़ पेश की, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये तजावीज़ हमारे अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचेंगी, ज़रूर कोई अच्छा सा नतीजा सामने आएगा, जिसके बाद इस चीज़ पर एक रोकथाम लगेगी। और जो ये बढ़ता रुझान है आमतौर पे न्यूज़ की होड़ में कि हम ही सबसे पहले न्यूज़ पहुंचाएं लोगों की तरफ, हर एक इसी होड़ में एक जर्नलिस्ट बना बैठा है। कोई पॉजिटिव भी लिखते हैं, कोई नेगेटिव भी लिखते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि जो नेगेटिविटी समाज में फैलती है, जिससे अमन आमा पे असर पड़ता है, बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है, उन चीज़ों पर जब रोकथाम लगेगी, एक मैकेनिज़्म की शुरुआत हो जाएगी एक बार, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। श्रीनगर में मिशन ई ने आज अपने यहाँ ज़ेर तालीम रहे स्टूडेंट्स को एजाज़ से नवाजा। नीट और दीगर मसाबकती इम्तहानात में कामयाब करार पा स्टूडेंट्स की इज़्ज़त अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर में नीट के टॉपर बताए जा रहे ऐमान खान को खुसूसी एजाज़ पेश किया गया। ई मिशन के चेयरमैन हामिद मुफ्ती ने कहा कि 2 साल के कलील वक्त में उनके कोचिंग मरकज़ ने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। प्रोग्राम हमने इसलिए रखा था ताकि जो बच्चे हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं वो एनकरेज हो जाए उन बच्चों को देख के जिनने ये क्रैक किया है, नीट JEE जो भी क्रैक किया है। हमारा अभी 2रा साल ही है, तो माशाल्लाह रिजल्ट्स हम हमेशा बहुत अच्छे देते आ रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ इस मुकाम पर। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का है, उसके बाद जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं जिनने मेरे को वक्त पे मोटिवेट किया है, पढ़ाया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। तो उसके बाद रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस ये है, मैंने यही देखा है कि आपको हार्ड वर्क करते ही रहना चाहिए। आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज इसमें आपका यही देखा जाता है कि आप कितने स्मार्टली इस पेपर को अटेम्प्ट करते हो, कितने कम टाइम में करते हो, और अपनी कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज कश्मीर में मनाया गया। खानियार में दस्तगीर साहब की ज़ियारत पर हजारों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और नमाज असर के बाद ज़ियारत से फैज़याब हुए। अकीदतमंदों ने कहा कि वो पूरे आलम के लिए अमन व आशती की मुराद लेकर यहाँ आए हैं। जिला शुपिया में भी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल पंजोरा शोपिया में शब ख़्वानी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कुलगाम में हजरत मीर सईद हुसैन समनानी का सालाना उर्स पाक मनाया गया। रात भर ज़ियारत आलिया पर शब ख़्वानी और दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। नमाज फजर पर तबरुकात की निशानदही कराई गई। पुंछ के सुरनकोट में मुगल रोड पर पुलिस की एक स्कॉट गाड़ी खाई में गिर गई। बीती शब पेश आए सड़क हादसे में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई, जबकि 4 एहलकार जख्मी हुए। SSP अपनी टीम के हमरा पीर की गली के दौरे से वापस हो रहे थे। श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने शजरकारी मुहिम के दौरान 5 लाख पेड़ लगाने का निशाना मुकर्रर किया। इस सिलसिले में कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर से मुहिम का आगाज किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि आने वाले दिनों में तदरीसी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेगा रैशनलाइजेशन का अमल शुरू किया जाएगा। जिला पुलवामा के संगरोनी और उसके मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में एनरोलमेंट मुहिम में शिरकत के बाद तसद्दुक हुसैन ने मीडिया के साथ बात की। अवंतीपुरा में आओ स्कूल चले हम मुहिम चलाई गई। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन इस दौरान शरीक रहे। शुरका ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मयार तालीम बढ़ाने के लिए वालिदैन का साथ जरूरी है। अनंतनाग में भी मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज किया गया। सिलसिले में सर हमदान के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शाख साज मोहल्ला में तकरीब मुनक्किद की गई थी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराने के फवायद से वालिदैन को आगाह किया गया। बानीपुरा के तालीमी जोन गुरेज में एनरोलमेंट ड्राइव शद्दुमत से जारी है। ZEO अब्दुर्रहीम मागरे की क़यादत में मुहिम चलाई जा रही है। इस सरहदी खित्ते में प्राइवेट तालीमी इदारे न होने के बराबर हैं।
पुंछ में मसनूई आज़ा लगाने का कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप में तकरीबन 250 माजूरों को मसनूई आज़ा लगाए गए। रजाकार तंजीम प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट की जानिब से इस कैंप का इनकाद किया गया था। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रघुलांगर ने राजौरी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने डीडीसी मेंबर्स, डीडीसी चेयरमैन और पीआरआई अरकान के साथ मीटिंग भी की। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में ब्लड स्टोरेज यूनिट त्राल का क़याम अमल में लाया गया। इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मुलाज़मीन, कारोबारी अफराद के साथ साथ आम लोगों ने अपना खून का अतिया दिया। मेडोरा त्राल में आज खेल के मैदान को आवाम के नाम वक्फ किया गया है। इस सिलसिले में यहाँ एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। कस्बा फामपुर में स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने एक डिपार्टमेंट स्टोर का क़याम अमल में लाया, जिसका आज इफ्तिताह किया गया। इस स्टोर में कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बडगाम में 2 बदनाम ज़माना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन मागाम की पार्टी ने बटपुरा कानहवा में नाका चेकिंग के दौरान 2 अफराद को मशकूक हालत में घूमते हुए रोका। मुनशियात फरोशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। डंगमार के चंदीलोरा में आग की वारदात में नज़ीर अहमद मागरी की दुकान पूरी तरह खाकस्तर हो गई। दुकान में आग आज सुबह नमूदार हुई और लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। बानीपुरा में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जानिब से रवा माली साल के दौरान 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, जबकि जिले में इस वक्त 17 सोसाइटीज कामयाबी के साथ अपना कारोबार कर रही हैं। कोऑपरेटिव हफ्ते के हवाले से डीसी बानीपुरा की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोऑपरेटिव वीक के सिलसिले में बारामूला में जिले सतह का एक अजीम शान तकरीब का इनकाद किया गया। डीसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होकर कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की बड़ी सलाहियत है। कोऑपरेटिव वीक की मुनासिबत से बारामूला में तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली और कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। शोपियां के किलर इलाके में ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने लोगों की इलाके से मुताल्लिक शिकायत समेत दीगर मसाइल को इत्मीनान से सुना। सांबा में इंतजामिया की जानिब से एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता ने मोहरगढ़ से मानसर तक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन को हरी झंडी दिखाई। ड्रग एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रामबन के इश्तराक से इस मुहिम का आगाज किया गया।